Assalamu alaikum, adab, welcome to my YouTube channel E4E1 Economics for Everyone Economics। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई डिड सम टॉपिक्स इन इट, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, economic analysis, theories and models. So let's discuss. First we will discuss here subject matter of economics. दो चीज़ों की हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था एज ए सोशल साइंस और एज ए साइंस हम बात करेंगे। सो एज ए सोशल साइंस हम बात करेंगे, एज साइंस हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस एंड ए साइंस। सो इसमें हम दो व्यू लेंगे। वी विल टेक टू व्यूज ऑफ टू इकोनॉमिस्ट्स। सो दो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम एक पहला था अल्फ्रेड मार्शल एंड दूसरा था लियोनल रॉबिन्स। तो ये अर्ली थर्टीज में आते हैं। तो ये अपने व्यूज देते हैं अबाउट द इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस। ठीक है। सो आई विल डिस्कस दीज टू, मतलब जिनके ये दो इकोनॉमिस्ट के व्यू है, मैं ये डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस। सो ही एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन वन हैंड, and on the other hand, and the most important side is the study of man. So it is the study of wealth. It is a study of wealth on the one hand, and it is the study of wealth, and other side is the study of man. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, जब मैन की बात आती है, जब सोशल लाइफ की बात आती है, तो उसे और जब सोशल लाइफ जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। सो एज ए सोशल साइंस अल्फ्रेड मार्शल डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स और डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस which deals with the study of wealth on the one hand, and on the most important hand it studies study of man. In other words, Alfred Marshall explains economics as a social science, which describes social behavior or social actions. देखिए यहाँ पे सोशल एक्शंस आ गए। सोशल एक्शंस आप कहेंगे किन के लिए होंगे ये सोशल एक्शंस? टू अटेन मैक्सिमम वेलफेयर। और इकोनॉमिक्स का यही गोल होता है, टू अटेन मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैन। ओके, तो आपको लगा ही होगा इसमें सोशल एक्शंस आ गए, स्टडी ऑफ मैन आ गई। सो हुई नहीं as a social science. According to Alfred Marshall, it is the study of wealth, and it is the study of man, and it is the study of, and it examines social actions to attain maximum welfare of man. So it is a social science. So according to Leonard Robbins, he came in early 30s with his alternative view of economics in 1932. In 1932, he defines economics as a science, or he explains economics as a social science which studies, according to Leonard Robbins, economics is a social science which studies human behavior. Human behavior as a relationship between scar, means, and ends. So here means refers to resources of production, resources of economy, and here ends refers to wants of human beings. So I will discuss the basic problem of economy, that is scarcity and choice, the basic problem of scarcity and choice. And लियोनार्ड रॉबिन्स उसमें बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है, तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे वहां पे उस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे ये बताता है, इट इज अ सोशल साइंस which studies human behavior as a relationship between scar, means, and ends. Okay, and these scar means and the security of resources, and these security resources have alternative uses, and they have to allocate in a particular allocation, alternative uses. ओके,
तो ये था लियोनल रॉबिन्स का व्यू. तो अकॉर्डिंग टू these economists, they used to define economics in early 30s. Economics is a social science according to Alfred Marshall. It is a study of wealth and it's a study of man, and it's a study of it examines social access to attain maximum welfare of man. And according to Leonard Robbins, it studies human behavior as a relationship between scale means and ends, and these scale means have alternative uses. So ये हो गया अकॉर्डिंग टू मतलब ये हो गया इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस. अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस की बात करेंगे तो देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जब क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स का दौर खत्म हुआ, जब क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स का दौर खत्म हुआ, तब इकोनॉमिस्ट्स ने ट्राई किया जो इकोनॉमिक्स थियरीज देते हैं. वी विल दे एनकाउंटर दी थियरीज, दे डिक्लेयर दी थियरीज, और दे ट्राई टू चेक वेदर द थियरीज आर प्रूफ और डिसप्रूफ. तो क्या ये अच्छे मतलब क्या ये करेक्ट है, क्या अप्लीकेबल है या नहीं है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं एज ए साइंस इट स्टडीज systematic approach, or it explain systematic arrangement of choices. So आपको मैंने उस वाले वीडियो में बोला था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइसेस अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स. आई विल डिस्कस इट इन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एंड चॉइस. आई टोल्ड यू. So, as a science, economics is a systematic approach or it's a systematic arrangement of choices, of choices. ठीक है, तो विद द passage of time इकोनॉमिक्स जब थियरीज दे रहे थे तो उनको प्रूव करने की जरूरत थी. तो दे यूज मॉडल्स टू कंक्लूड, टू ड्रॉ द रिजल्ट ऑफ थियरीज, वेदर द थियरीज आर प्रूफ और डिसप्रूफ. क्या ये करेक्ट है, क्या ये सही है, चाहे क्या ये गलत है. ठीक है, तो एज ए साइंस तो दे यूज आप देखते हैं कि आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, तो उसमें इकोनॉमिस्ट्स यूज करते हैं स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. दे यूज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, calculus and many more other concepts to draw the conclusions of economic theory, to draw the conclusion of economic model. Okay, so it was the view of the view of two economists as a social science, and it is the science. I explained it. Systematic approach explains systematic arrangement of choices. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. अब बात आई मॉडल्स एंड थियरीज की. तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ज्यादा नहीं डीप में जाऊंगा, ऐसी मतलब बेसिक्स क्लियर करूंगा. देखिए जब थियरी की बात आती है, जब थियरीज की बात आती है तो ये होता है सेट ऑफ एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, ओके. इट इज अ सेट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, एंड predictions. So theories दिए जाते when an economist observe economic phenomena, or when an economist observe an economy. जब एक economist observe करता है इकोनॉमी को, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखता है, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब वो देखता है इकोनॉमी में, तो वो सेट ऑफ एक्सप्लेन ऑब्जर्व करता है और बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन देता है, प्रिडिक्ट करता है क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या होने वाला है. तो उसको थियरीज कहते हैं. तो दीज आर द caused behavior theories. These are the caused behavior theories. ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है. देखो अगर एक कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, तो अगर रैशनल इंटरेस्ट के बारे में बात के, वो हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करता है. एंड वी विल डिस्कस इट इन कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थियरीज. So I told you it is a set of explanation, predictions, and it is caused behavior choice, and it is caused behavior. Okay, so अब मॉडल्स क्या है? मॉडल्स तो जब इकोनॉमिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, with the help of mathematical tools, or with the help of statistical tools, to draw the conclusions of theories, to try to discuss, try to explain whether the theories are proof or disproof. So they are models. They use
they use statements, and these models are abstractions of theories. They try to think whether they try to explain, or they explain theory सही है या गलत है, क्या इसका फायदा होगा चाहे इसका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया theories and models, and I will discuss most important topic जो यूजीसी के बारे में, 12th के बारे में। अगर 12th वाले भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि आफ्टर 12th अगर वो किसी एंट्रेंस टेस्ट में जाना चाहते हैं तो बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर होगा। तो यूजीसी वाले तो methodology of economics, yes, methodology of economics, ये हुआ। methodology of economics explains और it gives, मतलब जब इकोनॉमिस्ट थियरीज देते हैं, जब उनका वो कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, तो वो दो तरीकों से करते हैं। अब देखिए व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस और जनरलाइजेशन ऑफ लॉज, मतलब इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं टू जनरलाइज लॉज और एम्पिरिकली टेस्ट थियरीज टू प्रूव वेदर इट इज प्रूफ और डिसप्रूव। सो वो दे यूज टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड and inductive method. First one is deductive method and second one is inductive method. There is a lot of information in books, on internet, on other resources. So I will not go in deep here. I am trying to explain some basic things here. So it's let's talk about methodology of economics. So it has two types, or when the generalization of law takes place, there are two methods, deductive and inductive method. तो deductive method की जब हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक एरिया लेते हैं, वहां पे मेरा ऑरेंज शॉप है और बाकियों का ऑरेंज शॉप है, तो वहां पे कुछ ऑरेंज शॉप भी होंगे वहां पे। तो मैं करूंगा काम, व्हेन आई कलेक्ट डेटा, और फॉर एग्जाम्पल और एज्यूम, देखिए इकोनॉमिक्स सारी डिपेंड होती है एजम्पशन पे। वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट, देन आफ्टर दैट वी कैन गिव थियरी, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज मॉडल्स टू एब्स्ट्रैक्ट टू ड्रा कंक्लूजंस। ओके, सो जब मैं करूंगा काम, मैं पहले सोचूंगा। डिडक्टिव में आता है पर्टिकुलर टू जर्नल, पर्टिकुलर टू general, पर्टिकुलर टू general, ठीक है। इसमें आता है पर्टिकुलर टू जनरल। जब डेटा कलेक्ट किया जाए एक पर्टिकुलर पर्सन से, बाद में सब, मतलब बाद में देखेंगे कि वो डेटा उनके पास भी आता है या उससे मुख्तलिफ आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एरिया की बात की, मेरा भी ऑरेंज शॉप है, बाकियों का भी ऑरेंज शॉप है। मैं देखूंगा फर्स्ट पर्टिकुलर प्लेस पे अपनी जगह कि मैं देखूंगा कि मैं कितने में बेचूंगा डोजन, और फिर बाद में मैं अगर एक डोजन बेचूंगा, या क्या वो बाकी भी इसी प्राइस में बेचते हैं, क्या बाकी शॉप में जाऊंगा दूसरे की शॉप भी, आप कितने में एक डोजन बेचते हो, आप कितने में एक दर्जन बेचते हो, आप कितने में एक दर्जन बेचते हो। तो जब हम डेटा कलेक्ट करें फ्रॉम पर्टिकुलर एंड टू जर्नल, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, तो ये हुआ डिडक्टिव मेथड, ठीक है, ये हुआ डिडक्टिव मेथड। एंड inductive method is when we draw conclusions from general to particular. It's opposite of it. It is opposite of deductive method. When we conclude, or when we generalization of laws takes place with the help of inductive method, economists use to collect data from general to particular. Okay, here we discuss general to particular. Okay, तो जनरल टू पर्टिकुलर, देखिए अगर मैं यही एरिया लूं, मेरा भी ऑरेंज शॉप है, बाकियों का भी ऑरेंज शॉप है, मैं पहले उनके पास जाऊंगा, उनके पास कलेक्ट करूंगा डेटा, सबके पास जनरल। तो मैं बोलूंगा आप कितने में बेचते हो डोजन, आप कितने में बेचते हो डोजन, आपके खट्टे हैं, आपके मीठे हैं, एटसेट्रा। एंड बाद में वो अपनी जगह अप्लाई करूंगा, या बाद में वो मैं क्या यही, मतलब क्या ये भी मैं करता हूं। तो जनरल टू पर्टिकुलर, from general to particular, economists collect data to draw conclusion, for the generalization of laws, to focus whether the theories are proof or disproof. Okay, so ये था methodology of economics. So
let's talk about economic analysis. So I will discuss here about the economic analysis. So economic analysis is of two types. Positive economic analysis, and normative analysis. So जब इकोनॉमिक एनालिसिस की बात की जाए, जब इकोनॉमिस्ट्स एनालाइज करते हैं, एनालाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया और इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जब ये एक्सप्लेन करते हैं थियरीज को, जब ये देखते हैं थियरीज को, so there are two types of economic analysis. They are positive economic analysis and second one is normative economic analysis. So when we talk about the positive economic analysis, it explains us what it is. ये हमें बताता है ये है क्या, what it is. अगर एक लॉ को या अगर एक थियोरी को अगर अप्लाई किया जाए एक इकोनॉमी में, तो ये है क्या, इससे मतलब है क्या, what it is. For example, law of demand है. So we know other things remaining constant, other things remaining same, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, यही तो व्हाट इट इज, इससे क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है. सो व्हाट इट इज, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ फ्री हैंड्स, जब उसकी हम बात करेंगे, मार्केट मॉडल की बात करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा इसने क्यों बोला था व्हाट इट इज. देखिए ये वाला कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स यूज दिस कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव एनालिसिस, तो इसमें टू ड्रा द कंक्लूजन और टू सी वेदर द थियरी इज प्रूफ और डिस्प्रूव, दे यूज positive analysis. What it is, it explains what it is. मतलब here positive questions are asked. देखिए मतलब यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए मैंने एग्जांपल दी लाभ डिमांड की, अगर लाभ डिमांड दिखाता है हमें, देखिए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दिखा रहा है, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. या इफ वी talk about Gaussian's first law और law of diminishing marginal utility, जब हम ज्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूज करते हैं, एक चीज के ज्यादा यूनिट्स कमोडिटी यूज करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट होती है डिमिनिशिंग, वो स्टार्ट मतलब वो क्या करती है, वो डाउन मतलब डिक्रीज होती है, डिक्लाइन होती है, कम होती है ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद. तो इससे ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसके पॉजिटिव वैल्यू बेस्ड बिहेवियर, ओके. सो if I will talk about normative economic analysis, so normative economic analysis is, it explains us what it ought to be. It is most important, this basics is most important for UGC. Okay, so remember every point I discussed here, please cooperate. Okay, so what it ought to be, so इससे क्या होगा पूरी सोसाइटी पे, पूरे समाज पे, पूरी इकोनॉमी में. अगर एक देख लाभ डिमांड है, अगर ये अप्लाई किया जाए तो एज होल क्या असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये किसके लिए है, तो ये क्या बोलता है, ये कौन बोलता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. Normative economic analysis explains us what it ought to be. देखिए एग्जाम्पल में लेता हूं IL की, इंडियन एग्रीकल्चर लॉज. यहाँ पर देखिए 22 सितंबर 2020 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई थी, थ्री टर्म्स बिल. तो थ्री टर्म्स बिल पास हुई थी जिसमें मिनिमाइजेशन ऑफ प्राइसेस थे और कुछ दो चीजें भी थी, मुझे पूरी याद नहीं है, तो आप जाके चेक कीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. तो उससे देखिए अब उससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मिनिमम प्राइसेस देंगे फार्मर्स को,
तो उनको लगा कि हमारा वेलफेयर मैक्सिमम नहीं होगा, हमारा मैक्सिमम वेलफेयर नहीं होगा, तो वो प्रोटेस्ट करने आए। देखो, दे आर स्टिल डूइंग प्रोटेस्ट एंड मैनी अदर पीपुल्स आर, तो उसमें जमा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इट ऑट बी, देखिए असर क्या हो गया, वो कितना टाइम हो गया। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज 2 फेब है, तो देखिए 6 मंथ्स हो, मतलब 6 मंथ्स, 6th मंथ है उसका, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे माहौल, मतलब इससे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इससे क्या असर पड़ेगा, इससे क्या असर पड़ेगा। तो ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। व्हेन द इकोनॉमिक जनरलाइजेशन ऑफ लॉज टेक्स प्लेस, सो व्हाट हैपेंस, इट एक्सप्लेन्स अस, इट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स अस, ये हमें बताता है व्हाट इट ऑट टू बी, ये किसके लिए, ये क्या है, इससे क्या होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लगा होगा, ये था कुछ बेसिक्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अबाउट द थियरीज एंड मॉडल्स, अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, अबाउट द इकोनॉमिक एनालिसिस। मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसके लिए, यूजीसी वालों के लिए, और हाँ, यूजीसी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं डेट वो लिखता हूँ क्योंकि आपको काम में आएगा, शायद शायद जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन आए, ठीक है। तो याद कीजिए, मतलब याद रखिए व्हाट इट ऑट टू बी, तो ठीक है। तो ये था बेसिक्स, इसके बारे में मैंने बोला, इकोनॉमिक एनालिसिस। अब है इसमें, देखिए अब है इसमें हमें पढ़ने हैं, अब हम स्टार्ट, मतलब यहां से हमने स्टार्ट की जर्नी किसकी, इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट वी एक्सप्लेन what economics is. It is a social science, it is a science, so it is a when we talk about it is a social science, जब हम social science की बात करें तो हम दो व्यू लेते हैं, अल्फ्रेड मार्शल और लियोनार्डो रॉबिन्स की दो व्यू लेते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, it's a study of wealth on one hand, and the other most important hand is the study of man. So it explains, or in other words, it explains our social actions to attain maximum welfare of man. ये अल्फ्रेड मार्शल बोलता है। तो लियोनार्डो रॉबिन्स बोलते हैं 1932 में, वो बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर मीन्स एंड एंड्स, ठीक है। यहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है, जब लियोनार्डो रॉबिन्स एक बुक लिखता है 1932 में, या कुछ रिसोर्सेज बोलते हैं 1935 में। आप याद रखिए अर्ली 30s में इसने बुक लिखी थी, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बाद में मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा लियोनार्डो रॉबिन्स का जो रोल था, मतलब जो इसकी डेफिनेशन थी, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एंड चॉइस, एंड उससे हम अपनी जर्नी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जर्नी थी, यहाँ से हमें हमारी जर्नी जो इकोनॉमिक्स की है वो स्टार्ट होती है। मैंने बोला, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड यू विल सपोर्ट। और मैं चाहता हूं मैं खुद से इंस्पायर हो, मतलब खुद से इंस्पायर होकर दूसरों को इंस्पायरेशन देना चाहता हूं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज, आई एम वर्किंग हार्ड, सो प्लीज help me to inspire myself, to inspire you, and to inspire other peoples in the Kashmir Valley. Okay, so ये था कुछ basics about the subject matter of economics, about about the views of two economists, about the methodology of economics, about the theories and models, and about the economic analysis. So I hope you will support. Allah Hafiz.